Hello बच्चों, hello सभी को. Hope so your LRDI preparations are going very good. And today's set is games and tournament set, and you will literally enjoy this set, and you will feel confident after doing these type of sets. तो आइए मिलके start करते हैं इस set को और देखते हैं कैसे होगा ये set. So this particular set says that in the European League, four football teams are going to play against each other, and moreover, there are four questions are given in this set. You can see that you can take screenshot from here, and let's start now. We do question together. So there are four football teams are going to play against each other. Some matches have been played. There are some matches which have been played. All matches have not been played. And unfortunately, much of the information was accidentally erased. All right. It is known that the teams awarded 2 points for a win, one for a draw, and zero for a loss. And this is a table which is given. First of all, we have to fill this table because these questions are based on this table. And second, there is a table known as win-loss table. We will make that table also so that we can do all these type of questions. So let's start now. So particularly we have to fill this table, and let's make one win-loss table also. In this table, what we do, we show these teams, and team names are Arsenal, AC Milan, third one is Chelsea, and the fourth one is Manchester United. There are four these teams given in our question. And what is win-loss table, sir? We will see now. And write these four teams horizontally also: Arsenal, AC Milan, Chelsea, and Manchester United. Sometimes we don't need these type of tables, but if we make this table, we will know uh, which team won from which other team, which team lost against which other team, uh, which two matches ended in a draw, which match and won other team. All information we can get, win loss information we can get from this table. So this is a table which we have make. Again, uh, सारी टीम से खेली नहीं है यहाँ पे, बट जितनी भी इंफॉर्मेशन है उसके बेसिस पे हमें ये जो है इंफॉर्मेशन फिल करनी है. अगेन, आर्सेनल का आर्सेनल के साथ मैच नहीं हुआ होगा, एसी मिलन का एसी मिलन के साथ नहीं, चेल्सी का चेल्सी के साथ नहीं, मैनचेस्टर का मैनचेस्टर यूनाइटेड के साथ नहीं. सो वी हैव टू फिल दिस टेबल विच इज लेफ्ट नाउ. सो नाउ if we look at table which is given here, it is given that there are 5 points which are awarded, which AC Milan got. ये 5 पॉइंट कैसे मिले होंगे सर? तो जीत के लिए 2 पॉइंट मिलते हैं, और हार के लिए कोई पॉइंट नहीं मिलता, और ड्रॉ के लिए एक ही पॉइंट मिलता है. तो अगेन, अगर चार ही टीम है तो मैक्सिमम जो मैचेस खेल सकती है कोई भी टीम वो तीन है ना. सो लाइक एसी मिलन can play with Arsenal, can play with Chelsea, can play with Manchester United, है ना. So maximum three matches can be played by one particular team, right, sir? So if AC Milan got earned 5 points, so हाउ इट इज पॉसिबल? तो ये पॉसिबल कैसे हो सकता है? ये पॉसिबल केवल तभी हो सकता है जब इसने दो मैच जीते हो और एक मैच ड्रॉ किया गया हो. क्योंकि दो मैच जीते हैं तो 4 पॉइंट मिलेंगे, ड्रॉ पे कोई पॉइंट नहीं मिलेगा, ड्रॉ पे एक पॉइंट मिलेगा, लॉस पे कोई पॉइंट नहीं मिलेगा. सो बेसिकली ऑब्वियसली इसने तीनों ही मैच खेले होंगे, जिसमें से दो जीते होंगे, और इसका एक मैच जो है वो ड्रॉ हो गया होगा, और हारा कोई भी नहीं होगा. दिस इज द इंफॉर्मेशन हियर, है ना. सो बेसिकली फर्स्ट थिंग. सेकेंड, if we look at Chelsea got 2 points. Chelsea earned 2 points, and उसने एक भी मैच नहीं जीता है, फिर भी 2 पॉइंट मिले हैं. तो वो कैसे पॉसिबल है? हाउ इट इज पॉसिबल? इट इज ओनली पॉसिबल व्हेन इट्स टू मैचेस वर एंडेड इन अ ड्रॉ, है ना. दो मैचेस जो है वो इसके ड्रॉ हो गए होंगे, तो तभी 2 पॉइंट मिले होंगे. तो इसने दो मैचेस इसके पक्का ड्रॉ हुए होंगे, ठीक है, और उसके उसके 2 पॉइंट मिले होंगे. ऑब्वियसली है कि
हाँ जी, ये 2 पॉइंट समझ में आ गए, तो 2 मैच इसके साथ ड्रॉ हुए हैं। वन मोर थिंग, जो मैच ड्रॉ हुए हैं चेल्सी के, वो मैनचेस्टर यूनाइटेड के साथ नहीं हो सकते, बिकॉज़ मैनचेस्टर यूनाइटेड अर्न्ड 0 पॉइंट। देयर इज नो पॉइंट मैनचेस्टर यूनाइटेड अर्न्ड। एंड अगर उसने कोई भी पॉइंट नहीं जीता है, तो इसका मतलब ये हुआ कि उसका कोई मैच ड्रॉ तो नहीं हुआ है। कोई भी मैच हुआ होगा तो उसने हारा ही होगा सर, है ना? कोई भी मैच होगा तो उसने वो हारा ही होगा, है ना? ना कोई जीता होगा, ना कोई ड्रॉ हुआ होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो यहाँ पे 2 मैचेस हुए हैं, ठीक है, अगर कोई मैच मैनचेस्टर यूनाइटेड के साथ इसका हुआ है, तो पक्का 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 वो हारा ही होगा। अगर हुआ है तो इसके साथ ड्रॉ नहीं हो सकता। तो अगर चेल्सी के 2 मैच ड्रॉ हुए हैं, देखो मैनचेस्टर के साथ ड्रॉ नहीं हो सकता, क्योंकि फिर मैनचेस्टर को 1 पॉइंट मिल जाएगा सर। इसका मतलब जो चेल्सी के 2 ड्रॉ हुए हैं, वो पक्का आर्सेनल और एसी मिलन के साथ ही हुए हैं। तो चेल्सी का आर्सेनल और एसी मिलन के साथ ड्रॉ, और ऐसे ही आर्सेनल का, हाँ जी, चेल्सी का आर्सेनल के साथ ड्रॉ हो गया और एसी मिलन के साथ ड्रॉ हो गया। और ऐसे ही अगर हम यहाँ देखें तो चेल्सी का आर्सेनल के साथ ड्रॉ हो गया, बिकॉज दिस इज अ डबल टेबल। अगर हमने हॉरिजॉन्टली फिल किया है तो हमें वर्टिकली भी फिल करना है। तो यहाँ पे ये भी ड्रॉ हुआ होगा और एसी मिलन के साथ भी ड्रॉ हुआ होगा। अभी इस मैच का हमें पता नहीं है। दूसरी बात, एसी मिलन ने जो है 2 मैच जीते थे। अभी ड्रॉ का तो उसका निकल गया, चेल्सी के साथ है, तो जो दो 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 जीते थे, वो एक आर्सेनल से जीता होगा, एक मैनचेस्टर से जीता होगा। इट मींस दैट आर्सेनल जो है, एसी मिलन आर्सेनल से जीत गया होगा, तो एसी मिलन, हाँ जी, आर्सेनल जो है वो एसी मिलन से हार गया होगा, तो यहाँ लॉस आएगा। ऐसे ही एसी मिलन जो है मैनचेस्टर से जीत गया होगा, तो जो मैनचेस्टर है वो एसी मिलन से हार गया होगा, तो यहाँ पे लॉस दिखा देंगे हम लोग। ठीक है जी, ठीक है सर, यहां तक इंफॉर्मेशन एकदम हमें क्लियर नजर आ रही है सर। अब यहां से एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट निकल के आता है, तो अगर चेल्सी के दोनों ही मैच ड्रॉ हुए हैं और इस मैच का कोई रिजल्ट निकल नहीं सकता, क्योंकि अगर ये, देखो ये रिजल्ट क्या, ये मैच हो ही नहीं सकता। कौन सा सर? चेल्सी का मैनचेस्टर के साथ। सर क्यों नहीं हो सकता? आप सोचिए, अगर ये चेल्सी जीती 2 पॉइंट, तो इसके टोटल 4 पॉइंट हो जाएंगे, जबकि इसके 2 ही पॉइंट है। इसका मतलब ये ना तो जीत सकती चेल्सी, ना ये हार सकती मैनचेस्टर से, क्योंकि मैनचेस्टर हार गई तो उसके 2 पॉइंट हो जाएंगे, उसके नहीं हो सकते। ना ये ड्रॉ हो सकता, क्यों? क्योंकि यहाँ पे फिर एक एक पॉइंट और ऐड हो जाएगा। इसका मतलब सर ये मैच हुआ ही नहीं है। ये मैच एक्चुअली हुआ ही नहीं। नोट हैपन, अभी तक ये मैच हुआ ही नहीं है। नोट हैपन, ये मैच अभी तक सर हुआ ही नहीं है, ये पक्का है सर। और इससे सर ये समझ में आता है कि चेल्सी अभी तक 2 ही मैच खेली, टीम जो है 2 ही मैच खेली है। चेल्सी 2 ही मैच खेली है अभी तक। ठीक है सर, ठीक है, यहां तक हमें एकदम क्लियर है सर, एकदम क्लियर है। तो अब आते हैं सर आगे की तरफ। तो अगर यहाँ पे इसके 2 ही पॉइंट है और दोनों ही मैच ड्रॉ से आए हैं, तो जितने गोल इसने खाए होंगे, इसने उतने ही गोल किए होंगे। अदरवाइज ड्रॉ कैसे हो सकता है? कोई भी मैच अगर ड्रॉ होगा, तो दोनों ने इक्वल इक्वल पॉइंट्स एक दूसरे के अगेंस्ट किए होंगे, है ना? तो इसका मतलब अगर दोनों ही मैच ड्रॉ हुए हैं, तो टोटल अगेंस्ट शुड बी टोटल गोल्स 4 होंगे। जितने गोल्स खाए हैं उतने ही गोल्स उसने किए होंगे, तो 4 गोल्स अगर इसके अगेंस्ट हुए तो 4 ही इसने किए होंगे टोटल मिला के। और टोटल जो गोल्स 4 होते हैं, जो गोल्स किसी भी टीम ने किए होते हैं, कहना ही से वो टोटल गोल्स अगेंस्ट के इक्वल होता है, क्योंकि अगर कोई टीम करेगी किसी के अगेंस्ट, तो वो एसेट लायबिलिटी की तरह है, तो कहीं ना कहीं तो वो बैलेंस शीट में शो होगा, है ना? तो उसका यूज जो है वो एसेट में शो होता है, उसका जो लाइब, हाँ जी, जिसका हमें वापस देना है वो लायबिलिटी में। तो अगर आप मान लीजिए मैंने किसी को गोल किया है, तो वो मेरे गोल्स 4 में होगा और सामने वाली टीम के गोल्स अगेंस्ट में होगा। तो बेसिकली गोल्स 4 का और गोल्स अगेंस्ट का जो सम है वो सेम होना चाहिए। तो वी कैन से दैट 4 + 5 9 + 4 13। इफ टोटल गोल्स 4 आर 13, सो टोटल गोल अगेंस्ट आर ऑल्सो 13। सो 4 + 4 8 + 3 11। तो ये कितने होने चाहिए सर? ये 2 होने चाहिए, सो दैट इट ऑल्सो बिकम 13। ये भी कितने बन जाए? 13 बन जाए। तो हमें ये पता लग गया कि यहाँ पे अगेंस्ट कितने थे। ठीक है सर, ये पता लग गया। अब यहाँ पे ये इंफॉर्मेशन बची है, तो इसके बारे में भी कुछ पता लगाते हैं। देखिए, यहाँ पे अगर आप आर्सेनल को देखोगे, तो गोल्स 4 और गोल्स अगेंस्ट सेम है। अभी इसका एक मैच ड्रॉ हुआ है, उस पर्टिकुलर मैच में तो जितने गोल्स 4 होंगे उतने गोल्स अगेंस्ट हो जाएंगे, है ना? भाई एक्स गोल्स 4 है यदि, तो एक्स गोल्स अगेंस्ट हो जाएंगे। बट स्टिल यहाँ पे जो पॉइंट बचेंगे वो इक्वल इक्वल बचेंगे, बिकॉज मान लीजिए एक्स एक्स में जीत वाले में हुए, ड्रॉ वाले में हुए, तो बाकी दोनों में बचेंगे जो, वो 4 - x बचेंगे। अभी दोनों में 4 - x है और इसने एक मैच हारा हुआ है। इसका मतलब जिस मैच इसने जो हारा हुआ है उसमें जो गोल्स
अगेंस्ट हुए हैं वो ज्यादा हैं, और हमें गोल्स फॉर और गोल्स अगेंस्ट इक्वल बनाने हैं। एक मैच ड्रॉ हो चुका है, अब जो पॉइंट बचे हैं वो इक्वल इक्वल बचे हैं। जहां पे उसने हारा होगा वहां पे पॉइंट ज्यादा चले गए होंगे उसके अगेंस्ट। तो इसका मतलब जो मैनचेस्टर के साथ है सर, वो मैच जीतना ही पड़ेगा सो दैट पॉइंट्स इक्वल इक्वल हो जाए। अदरवाइज गोल्स फॉर और गोल अगेंस्ट इक्वल हो नहीं सकते। एक मैच ड्रॉ हो चुका, वहां इक्वल इक्वल चले गए। अब अगर एक लॉस हुआ है तो एक विन भी करना पड़ेगा सो दैट जो गोल्स फॉर गोल्स अगेंस्ट है बचे हुए, वो भी इक्वल इक्वल हो जाए। अदरवाइज वो इक्वल हो नहीं सकते, क्योंकि गोल्स जो मैच लॉस किया है हमने उसमें गोल्स अगेंस्ट ज्यादा हो गए होंगे, तो जो विन किया है उसमें गोल्स फॉर ज्यादा हो जाएंगे सो दैट वो इक्वल हो जाए। दिस इज द ओनली पॉसिबिलिटी विच इज लेफ्ट। सो आर्सेनल का मैनचेस्टर के साथ जो मैच हुआ होगा वो पक्का आर्सेनल जीत गया होगा, और वी कैन से दैट जो मैनचेस्टर है वो आर्सेनल से हार गया होगा। सो इससे एक चीज समझ में आई कि सर मैनचेस्टर के भी दो ही मैच हुए अगर जरूरत है तो, और इसने दोनों हारे। ना ही इसका कोई ड्रॉ हुआ, ना ही इसका कोई जीत में आया। और अगर आर्सेनल के देखें तो इसके तीनों मैच हुए जिसमें से एक इसने जीता, एक इसने जीता, है ना, एक इसने जीता, एक इसने जो है हारा, एक ड्रॉ किया। तो ये ऐसे करके कुछ टेबल है, और यहाँ पे इसके दो मैच हुए, दोनों ड्रॉ हुए, जीता कोई नहीं और हारा भी कोई नहीं। तो ये टेबल इस तरह से करके हमारी कंप्लीट फिल हो जाती है। और अगर इसके पॉइंट्स भी निकालने हो तो हम वो भी निकाल सकते हैं। बेसिकली वी कैन से एक जीता है और एक ड्रॉ हुआ है, तो जीत के 2 पॉइंट और ड्रॉ का 1 पॉइंट, तो सर इसके टोटल 3 पॉइंट रहे होंगे। तो आई एम श्योर ये पूरा सेट देखो यहाँ पे बनता हुआ नजर आ रहा है, बन गया है हमारा। तो ये समझ में आया। अभी क्वेश्चंस का लेवल क्या है वो मैंने जानबूझ के आपको नहीं दिखाया, ठीक है। हो सकता है कि हमारे क्वेश्चंस जो थे वो पहले ही सॉल्व हो गए हों, बट जस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड मैंने आई फिल्ड कंप्लीट टेबल सो दैट यू कैन गेट कंप्लीट एक्सपोजर हाउ टू डू दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस। नाउ आई एम श्योर you are very much clear how to do these type of question. This question was from games and tournament, and next time if you look out these type of questions you can easily do these type of questions. Yes, games and tournament is one of the challenging topic, you can say that, from logical reasoning, but once you have done enough practice then you will feel confident, and concept wise there is not much enough like uh, बहुत ज्यादा वेरिएशंस नहीं शो करेगा कोई एग्जामिनर। मतलब आप क्वेश्चन को बना सकते हो, कॉन्सेप्चुअली सोच सकते हो। चलिए एक बार क्वेश्चंस को देख लेते हैं। लेट्स सी क्वेश्चंस नाउ। तो क्वेश्चन नंबर 1, द नंबर ऑफ मैचेस दैट एंडेड इन अ ड्रॉ। सो बेसिकली कितने मैच जो है वो ड्रॉ हुए, तो आपको यहाँ पे 4 दिख रहे होंगे, बट एक्चुअली 2 मैच ड्रॉ हुए हैं, चेल्सी और चेल्सी का आर्सेनल के साथ और आर्सेनल का चेल्सी के साथ। और ये डबल इंफॉर्मेशन है, ये वही इंफॉर्मेशन है ये ऊपर वाली। सो वी कैन से दैट देयर आर 2 मैचेस दैट वर एंडेड इन अ ड्रॉ। द नंबर ऑफ गोल्स स्कोर्ड अगेंस्ट एसी मिलन, एसी मिलन के अगेंस्ट जो गोल्स हुए थे वो 2 थे, वो ये रहा, ये हमने निकाला था। सो वी कैन से आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज आंसर ऑप्शन सी। थर्ड क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग टीम्स हैव प्लेड अगेंस्ट ऑल द अदर टीम्स। ऑल द अदर टीम्स मीन्स जिसने 3-3 मैचेस खेले हो। सो देयर आर 2 टीम्स हु प्लेड अगेंस्ट all other teams. One is Arsenal and the second one is AC Milan, not Chelsea, not Manchester, because they played 2 games. So we can say answer is Arsenal and AC Milan, that is B option. And the question number 4 is difference between the number of matches drawn by AC Milan and Chelsea. AC Milan draw only 1 match, whereas Chelsea draw 2 matches, and the difference is 1. We can say answer option 1 होना चाहिए, और यही सवाल का आंसर है। So I hope so you enjoyed this set. वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिएगा बच्चों, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मैं लाता रहूंगा इसी तरह के और वीडियो आपके लिए। थैंक यू, बाय।